Good morning, students. Welcome you all in online classes of social science. Dear students, in history we are reading chapter 8, the modern period. Chapter 8, the modern period. Basically, in this chapter, we have to read about the different sources of information, its importance. On the previous day, we had prepared a list of different sources of information of the modern Indian history. Now we shall go in details with each and every source of information. So first we will see the British document. Of course, there was British rule in our country, and you know that in the governance documentations take place. So documentations also took place during the British government, and the documents issued by the British government say many things about the people, the society, the economy and the condition of India at that time. So see here what is going. The British ruled over India for almost 200 years. You know very well, 200 सालों तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया. And during this period, many reforms were made by the government. And through these reforms, many things are told by these documents, by these reforms about the society and administration as well as the conditions of the people at the time. These documents are, you can see here, these documents are the Morley Minto reforms. You will also read it in some lessons. The report of Simon Commission 1929, the Government of India Act 1935. These were some of the British documents that say many things about the conditions of people and administration at the time. There were various bills that were passed by the government. It also gives a lot of information about the time. These bills were the Ilbert Bill, the Arms Bill. Means in this way we can say that British documents are important sources of information for the modern Indian history. The next is books. You know very well that books provide us a lot of knowledge. So many books were written in those periods. They were printed and written. They are preserved in public and private libraries. Many books are available even now as they have been reprinted, rewritten. Some of the important books written by Indians are आनंद मठ, जिसे लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बहुत ही जाना माना नाम है, जिसे महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा. अनहैप्पी इंडियंस, लाला लाजपत राय ने लिखा. तो ये सब कुछ ऐसे बुक्स हैं जो उस वक्त के बारे में हमें बहुत कुछ बतलाते हैं. इनके अलावा देर आर मेनी पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज written in this duration that give us an insight into the conditions of the time. मतलब उस समय के बारे में जो कंडीशंस, उस समय में जो कंडीशंस थे लोगों के, उसके बारे में बहुत काफ़ी कहते हैं ये सारे बुक्स. बहुत सारे ड्रामा, पोएट्री, स्टोरीज लिखे गए. तो ये रहा बुक्स. और अब एक और लेटर्स, राइटिंग्स, स्पीचेज एट्सेट्रा. उस वक्त कुछ लेटर्स भी लोगों ने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लिखा, राइटिंग्स लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, स्पीचेस बोले गए. तो वो स्पीचेस, लेटर्स, राइटिंग्स ये सब प्रिजर्व्ड हैं जो हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ बतलाते हैं. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट दैट टूक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी एट गांधी स्मृति नियर राजघाट, जहाँ पर उनको दफनाया गया था, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ गांधी स्मृति बनाया गया है. वहाँ पे आप जाके देखिए तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, जिसमें कि गांधी जी पे म्यूजियम भी है
और उसमें लगभग 60,000 बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में। यही नहीं बल्कि इसमें गांधी जी के 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी मौजूद है। अगर आपको कभी वहाँ जाने का मौका मिले गांधी स्मृति तो राजघाट में, तो आप वहाँ जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये सब उस समय के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज देते हैं। ओके, सम इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स दैट टेल अस अबाउट अ पेट्रियोटिक फीलिंग्स। अब स्लोगन्स बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे हमारे लीडर्स ने स्लोगन दिया जिससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगती है, नेशनल फॉरवर्ड पैदा होता है। तो ये भी बहुत सारी बतलाती हैं कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट स्ट्रगल many slogans were given that provided patriotic feelings among the people of India। कुछ स्लोगन्स तो आप भी जानते होंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये सारे स्लोगन्स भी हमें बहुत कुछ बतलाते हैं। ये बतलाते हैं कि हम उस समय फ्रीडम चाहते थे, लोगों को उत्साह की ज़रूरत थी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, द नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। You know very well that newspapers are a great source of information for any time। आज ही ले लो ना, आज न्यूज़पेपर में रोज बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो आज का न्यूज़पेपर अगर हम 100 साल बाद देखें तो क्या हमें नहीं मालूम चलेगा कि उस वक्त इंडिया में क्या हो रहा था, या उस वक्त वो ये पार्टिकुलर लोकेलिटी में क्या हो रहा था। तो उस वक्त भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स छपते थे जो हमें उस जमाने के बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बतलाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट में थे द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, ये सब कुछ न्यूज़पेपर्स थे उस समय के। कुछ वर्नाकुलर पेपर्स भी छपे। अब आप सोचते होंगे कि वर्नाकुलर पेपर्स क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। वर्नाकुलर्स का मतलब जो अपने देश के लोग लोकल लैंग्वेजेज में छापते थे, बंगाली, मराठी, हिंदी, उर्दू, ये वर्नाकुलर पेपर्स थे। और वर्नाकुलर मतलब देशी आप कह सकते हैं, देशी, जिसमें आज़ादी की बातें की जाती थी, जो जो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बातें की जाती थी, वो सारे वर्नाकुलर पेपर्स थे। तो उस वक्त कुछ वर्नाकुलर पेपर्स भी लिखे गए जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बतलाते हैं। आप समझो ना आप कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पेपर छाप रही है तो उसमें तो लोगों के साथ क्या गुजरता है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनके ग्रीवांसेस क्या है, ये तो नहीं छापेंगे ना, और उनको क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट से दिक्कतें हैं। लेकिन जो वर्नाकुलर पेपर्स थे उसमें तो ये सारी बातें भी होंगी कि लोगों को क्या कष्ट थे, लोग क्यों चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, ऑल दिस थिंग्स। तो उनमें कुछ वर्नाकुलर पेपर्स में थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो लिखते थे, केसरी मराठी लैंग्वेज में था, अमृत बाजार पत्रिका एक था जो बंगाली लैंग्वेज में था। इस तरीके से वर्नाकुलर पेपर्स भी छपते थे। लेकिन अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे यहाँ डू यू नो में। वर्नाकुलर पेपर्स आपके मैंने बताया ना उसके बारे में कि द ब्रिटिश पास्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ, 1878 में। क्यों हुआ? टू रिप्रेस द एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स एंड प्रोपेगेंडा। मतलब जो सरकार के विरुद्ध जो बातें हो रही थी, जो लोग लिख रहे थे, उनको रिप्रेस करने के लिए, उनको सप्रेस करने के, दबाने के लिए कि वो सारी बातें न छपे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार के लिए नुकसान का बात था ना, लोग उसके खिलाफ भड़क रहे थे इसकी वजह से। इसलिए उन्होंने एक प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया और लगे उस पर छानबीन करने, देखने की कौन सा हमारे अगेंस्ट जा रहा है। द इंडियन न्यूज़पेपर्स दैट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर। किन किन न्यूज़पेपर से, इंडियन न्यूज़पेपर से अंग्रेजों को दिक्कत था वो देखिए। सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हाली शहर पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश, सधारिणी, भारत संस्कारक, ये सब ऐसे कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे अड़ंगे डाल रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे थे। तो इन्हीं से उन्हें बहुत काफ़ी कष्ट था। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। Administrative report. Administrative report of the government on tribes, castes and land revenue settlement are also very important sources of information। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। The basic objective behind the surveys and reports of the British government was to learn about India before it could be administered effectively। मतलब उन लोगों, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे?
एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था कि अच्छी तरीके से भारत पे अधिकार किया जा सके, इसलिए वो लोग रिपोर्ट्स निकालते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। जैसे रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण 1913 to 1919 इन बिहार। ये भी कुछ हम उस समय के बारे में, भारत के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। अब अगला है इंटरनेट एंड डेटाबेस। ये तो बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप आज भी इंटरनेट और डेटाबेस का यूज़ करते हैं बहुत तरह के नॉलेज लेने के लिए। तो इंटरनेट और डेटाबेस उस समय के बारे में भी आपको बहुत कुछ बतलाएंगे। जैसे उनमें है डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल, इंडिया एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शंस, ये सारा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अवेलेबल ऑन इंटरनेट और ऑन CD रोम। अब तो इससे वाकिफ़ है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी फॉर्मेट, डिस्क, जैसे कि इन अ कोडेड फॉर्म में वहाँ डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लाइब्रेरी अ यूजर में बी एबल टू एक्सेस मैगजीन्स, आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, इमेजेस, साउंड फाइल्स एंड वीडियोज। आप डिजिटल लाइब्रेरी से ये सारी चीज़ देख सकते हैं जो उस समय के बारे में बतलाते हैं। विकीपीडिया, एवरीवन नोज अबाउट इट। इट इज़ एन ऑनलाइन फ्री एनसाइक्लोपीडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस वर्क ऑन इंटरनेट। आज भी इंटरनेट पे हम लोग विकीपीडिया से बहुत सारी चीज़ सर्च करते हैं और आज दुनिया में ये सबसे बड़ा सर्च इंजिन है। इट्स कंटेंट इज इंफॉर्मेटिव एज वेल एज वेरीफिएबल, मतलब बिल्कुल सही होते हैं इसके इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं क्या? ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल, उस जमाने के बिल्डिंग्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, मेनी बिल्डिंग्स हैव बीन गिवन। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल ऑफ दैट पीरियड आल्सो टेल अस। उस समय के जो लोग होंगे वो भी बहुत सारी चीज़ें बतलाते हैं। मैनी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड saw द इम्पोर्टेंट चेंजेस। अभी भी कुछ ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने उस समय फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, वो भी अपने एक्सपीरियंस बतलाते हैं और उस समय के लोगों के जनजीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इंडियाज सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड द सब्सिक्वेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन पावर। बेसिकली हम लोग इसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया के लोग सफ़र कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म के अंडर, और किस तरीके से उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा और उसे गेन भी किया और देश को फॉरेन पावर से आज़ाद किया। ये सारी चीज़ें हम लोग इस हिस्ट्री में, 8 क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। And at last we have one more. Do you know many changes that took place in the world originated in Europe, like Renaissance, Reformation, Industrial Revolution, French Revolution, Russian Revolution, nationalism, imperialism, all these things. तो हम लोग कुछ 9th में और कुछ 10th में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेसिकली हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें हम लोग 9th और 10th में हम लोग पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न पीरियड में हुआ था। 8th क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे जो इंडिया में हुआ था। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।